Chapter 8, 8.2 Gain of Animals. First, Earthworm. Activity 5. Observe an earthworm moving on soil in garden. Gently lift it and place it on piece of blotting or filter paper. Observe its movement. Figure 8.18. Then place it one smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement now. Is it different from that and on paper? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? पहले आप एक अर्थवर्म को गार्डन में चलते हुए देखो और फर्स्ट उस अर्थवर्म को फिल्टर पेपर पे रखो और वो उसकी गति उसकी मोमेंट को आप ऑब्जर्व करो और फिर आप उसको एक स्लाइड पे कांच के स्लाइड पे रखो और फिर से उसकी मोमेंट को आप नोटिस करो। तो क्या आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देता है? आप नोटिस करिए। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by small distance. Repeating such muscles expansion and contraction, the earthworm can move through soil. Its body secreted a slimy substance to help the movements. अर्थवर्म के बॉडी में हड्डियाँ नहीं होती, हमें पता है और हम इजीली देख भी सकते हैं। उसकी जो मसल्स है, पेशियाँ है, वो ही उसके बॉडी को घटने या बढ़ने में हेल्प करती है। वो अपने आगे का भाग को बॉडी को पहले पकड़ लेता है और पीछे के भाग को वो बाहर रखता है। जैसे कि वो पीछे के भाग से वो ज़मीन को पकड़ेगा, सॉइल को, आगे का भाग वो खुला ही होगा। How does it fix part of its body to ground? Under its body, it has a large number of teeny bristles, hair-like structure projecting out. The bristles and connected with muscles. The bristles helps to get good grip on the ground. वो अपने बॉडी के पार्ट्स को किस तरह से ज़मीन में जोड़े रखता है, हमने आगे ही देखा। तो उसके अंदर एक टीनी ब्रिस्टल्स मीन्स कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसके मसल से जुड़ी हुई होती है और इजीली वो ज़मीन को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प करती है। द अर्थवर्म एक्चुअली its वे थ्रू द सॉइल. Its body then threw away a undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. अर्थवर्म एक्चुअली सॉइल ही खाता है और वो जो खा के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है, पार्ट है मटेरियल का, वो बाहर निकाल देता है और जो अनडाइजेस्ट पार्ट है वो पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। Then snail. Activity 6. Observe a snail in your garden or in field. Have you seen rounded structure it carried on its back? इस फिगर में आप स्नेल को देख सकते हैं। इसी तरह आप स्नेल को गार्डन में या फील्ड वर्क एरिया में देखिए। दिस इज कॉल्ड अ सेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट is not made of bone. The cell is single unit and does not helping moving from place to place. It has to be dressed alone. आपने इस सेल पे एक स्नेल पे एक सेल देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर वो स्केलेटन का बना नहीं हुआ होता है या बॉन का बना नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ सिंगल यूनिट है। वो स्नेल को चलने में कोई हेल्प नहीं करता, बस वो स्नेल को स्नेल के साथ खींचा चला जाता है। Place the snail on a glass plate and watch it. When it starts moving carefully, lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath.
ये स्नेल को आप कांच के ग्लास पे प्लेट पे रख दीजिए और आप उसकी केयरफुली आप उसको नोटिस कीजिए और कांच को धीरे से ऊपर उठा के आप नीचे से नोटिस कीजिए कि वो किस तरह से चलता है, मूवमेंट करता है। A thick structure and a head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot, made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of a snail slow or fast as compare an earthworm? अभी जो आपको जो सेल के नीचे वो जो स्ट्रॉन्ग मसल्स दिख रही है वो उसका फुट है और वो मसल्स का बना हुआ है। अब धीरे से आप उसको रख दीजिए और किस तरह से उसकी मोमेंट लहरदार है वो नोटिस कीजिए। अभी आप सोचिए कि अर्थवर्म या स्नेल में से किसकी मोमेंट ज़्यादा फास्ट है या ज़्यादा स्लो है। देन कॉकरोच। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व कॉकरोच। Cockroach walk and climb as well as fly in the air. They have 3 pairs of legs. This helps in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. आप इस फिगर में कॉकरोच को देख सकते हैं। वो वॉक भी करता है और क्लाइंब भी करता है हवा में। आपने देखा है, इजीली आपको देख सकते हैं इस फिगर को। और जो उसके बॉडी के ऊपर जो आउटर लेयर है वो हार्ड आउटर स्केलेटन है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट्स। ये स्केलेटन जॉइंट प्लेट्स का बना हुआ आता है और वो उसको गति करने में हेल्प करता है। There are 2 pairs wings attached to the body behind head. The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move the leg for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. आगे की ओर से विंग्स जुड़े हुए होते हैं और उसके जो आगे का और पीछे का पैर होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। कॉकरोच में जो मसल्स होती है वो उसको हेल्प करती है और चलते समय और उड़ते समय उसकी विंग्स है वो उनको गति करने, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। Then birds fly in air and walk on ground. Some birds like duck and swan also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. The bones of hind limb are typical for walking and perching. The bony part of the forelimbs are modified as wing. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles for flight which are used to move the wings up the down. बर्ड्स हवा में उड़ते भी हैं और ज़मीन पे चलते भी हैं। हर कुछ बर्ड्स होते हैं डक और स्वान, वो स्विम भी करते हैं पानी में। बर्ड्स इजीली उड़ सकते क्योंकि उनके बॉन्स है वो एकदम हल्के होते हैं और पोले होते हैं और जो आगे के हाथ होते हैं वो उसके ऊपर विंग्स होती है, मतलब कि वो इजीली उड़ भी सकते हैं। और जो शोल्डर के बोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रेस्ट बोन वो इजीली मसल्स के बने हुए होते हैं, वो उनको चलने में और उड़ने में भी मदद करते हैं। इस फिगर को आप देख सकते हैं। देन फिश। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, पुट इट वाटर एंड पुश इट with one narrow and pointed forward. Figure 8.22. Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water from broadside. 8.22b. Are you able to make a boat move in water when you push from this side? अभी आप एक पेपर की मदद से बोट बनाइए और ध्यान रखें कि उसका आगे का भाग नुकीला हो, पॉइंटेड हो। और अभी आप इस फिगर में दिखाया गया उस तरह से आप उसको पानी में तैरने के लिए छोड़ दीजिए। आप उसको थोड़ा सा धक्का लगाइए और छोड़ दीजिए। क्या आपकी बोट पानी में गति कर रही है? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज somewhat like a fish? The head and tail the fish are smaller than the middle portion of body. The body tapers at both ends. This body shape is called stemline. आपने नोटिस किया कि मछली का जो पार्ट है आगे का और पीछे का वो भी पॉइंटेड होता है और
बड़ा बीच में जो पोर्शन होता है उससे साइज में छोटा होता है और बीच वाला पोर्शन बड़ा होता है। और इस तरह के शेप, बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। The shape is such as water can flow around it easily, allow to fish move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings toward the opposite side. The fish forms a curve as shown figure 8.24. Then quickly the body and tail curve the other side. This makes jerk and pushed the body forward. A series of such jerk make the fish swim ahead. This is helped by the finch the tail. इस फिगर में दिखाया गया है उसी तरह से फिश मोमेंट करती, जैसे कि उसका सिर जिस सिरे होता है उससे ऑपोजिट साइड पे टेल होती है। आप इस फिगर में इजीली देख सकते हैं। इसी तरह वो पानी में इजीली तैर सकती है और इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin like flippers on their feet to help them move easily in water? फिश के पास फिंग्स भी होते हैं जो उनकी बॉडी का संतुलन बनाने में मदद करते हैं और इजीली वो स्विम करते समय वो उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि वाटर डाइवर्स है वो भी फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं जब वो पानी में तैरते हैं, तभी उससे उनको सहायता मिलती है पानी में तैरने के लिए। हाउ डू स्नेक्स मूव? हैव यू सीन अ स्नेक स्लीदर? डज इट मूव स्ट्रेट? आपने सांप को क्या सरकते हुए देखा है, फिसलते हुए? Snakes have a long backbone. They have many thin muscles. They are connected each other even though they are far from one another. Muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. सांप का बैकबोन बहुत ही लंबा होता है और वो मसल से जुड़ा होता है और वो कितनी भी दूर चाहे हो पर उसकी मसल्स, बैकबोन्स, रिब, स्किन उसको इजीली सरकने में मदद करते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. Since its long body makes many loops and each loops give it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. स्नेक का बॉडी कर्व मीन्स की वलय में लूप बनाता है और इजी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो वलय बनाता जाता है और उसको वो आगे धकेलने में हेल्प करते हैं, इसीलिए वो इजीली फास्टली सरक सकता है और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता. We have learnt about the use of bones and muscles for movements of different animals. Paheli and Buzo have many questions in their shacks about the different movements in animals. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds? The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself this question: why do different animals have body parts they do have? How do these body parts help animals to move the way they do? What are similarities and differences in their body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? Why 2 legs for humans and 4 cows and buffaloes? Many animals seem to be having even number of legs. Why? Why is the bending of our legs different from that our arms? हमने कई सारे एनिमल्स की गति के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और उसको जानने का ट्राई किया. अभी पहली और बुज़ो के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो
ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल है, वो अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स बुक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं अपने आप से भी और औरों से भी। जैसे कि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस है कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स क्यों होती है, जैसे कि अलग अलग बॉडी के पार्ट शेप क्यों होते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है। So many questions and perhaps we have looked for some answers through our activity in this chapter and we need to look for many more answers. हमने इस चैप्टर में कई सारे एक्टिविटी की है और उससे हमने कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हमने सीखा है, सॉल्व करके सीखा है, और कई सारे क्वेश्चन है वो हम एक्टिविटी के थ्रू सीख सकते हैं इजीली। देन